Chapter 8 Quadrilateral. We start with theorem 8.1. It says diagonal of parallelogram, divide it into two congruent triangles. अब whenever you go for the theorem, read the theorem carefully and interpret that what is a figure. Here in this particular theorem, we have a parallelogram and a parallelogram has a diagonal. Then what we do? We draw a parallelogram right here in the center. So here it is. एक parallelogram ड्रॉ किया. ओके, एक लाइन कम थी तो उसको थोड़ा ज्यादा ले लिया. ओके, we have drawn another line और ऊपर से लिया. तो पैरेललोग्राम बन गया. उसका एक डायगोनल है फिगर के हिसाब से. डायगोनल भी हमने ड्रॉ किया. नाम देंगे A, B, C and D. So we write here A, B, C and D. अब हमें देना है गिवन. तो लिखते हैं गिवन. What is given? Given is a parallelogram. और उसका नाम है ABCD. We write ABCD is a parallelogram. AC is the diagonal. अब जब AC डायगोनल हुआ तो दो ट्रायंगल बने. ट्रायंगल ACD and triangle CAB are formed. तुम उसको कोई भी अलग नाम दे सकते हो. You can write ADC and ABC. You can write CDA and you can write CBA. कोई भी लिख सकते हो. Doesn't make any difference. Actually the thing is, दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास. अब वो जो दो ट्रायंगल है मार्क कर दें यहाँ से. See, this is triangle 1, जो कि मैंने ब्लू से बनाने की कोशिश किया. If it is identifiable तो. और दूसरा वाला रेड से कोशिश करते हैं. अच्छा लगे शायद. We see this is the second triangle. एक और ये दूसरा. दोनों की कॉमन साइड है AC. So these are our two triangles. हमें ये दोनों ट्रायंगलों को कन्क्लूड करना है. तो हम लिखेंगे टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमको ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC. ABC and ADC. ओके, अब देंगे हम प्रूफ. अच्छा, प्रूफ के लिए चलो. Then, as I said many a times, that always mention you are discussing about what. Here we are discussing about two triangles. So we write here in triangle ABC and triangle ADC we have. क्या है हमारे पास? तो since it is a parallelogram, हम साइडों को पहले पैरेलल कर लेते हैं. We say BC is parallel to AD. सही? BC is parallel to AD. And AC is the transversal. अगर वो है BC is parallel to AD and AC is the transversal, तो दो एंगल इक्वल हुए. एंगल BCA ये वाला एंगल is congruent to angle DAC. ये एंगल. These two angles are congruent. कैसे? रीजन क्या है? What is the reason why they are congruent? ब्रैकेट में हम लिखते हैं
alternate angles अगर क्लास मेरे साथ है अगर क्लास मेरे साथ है और लाइन्स एंड एंगल्स को पकड़ कर रखा है तो आपने ये चीज क्लियर कट आपके दिमाग में जाना है कि BC is parallel to AD and AC is the transversal, then these two angles are alternate angle. फिर से पैरेलल लाइंस की पैर बनाई जाए. We say this time हमने बोला AB is parallel to CD. See, AB is parallel to CD. फिर से ट्रांसवर्सल ले लेते हैं एंड ट्रांसवर्सल तो एक ही हुआ. AC is the transversal. तो दो एंगल फिर से कन्वर्ट हो गए. We say एंगल BAC. अब की बार जो एंगल हमने लिया वो ये दो एंगल है BAC. दिस एंगल सी is congruent to एंगल DCA. फिर से लिया हमने DCNA. ये ऊपर वाला कौन से एंगल है ये दोनों? अगेन योर आंसर इज योर राइट, अल्टरनेट एंगल. ओके, एक साइड ऐसी है AC is congruent to AC. ये साइड है कॉमन. So therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by angle side angle theorem, rule, condition, criterion, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो. हंस प्रूफ. ठीक है. Thanks for watching. Go for the presentation and get your marks. Next is theorem 8.7. Chapter 8 Quadrilateral. Theorem 8.7. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. मतलब ये है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है. पहला काम करेंगे हम फिगर बनाएंगे. एज यूजुअल इन ऑल द थ्योरम, व्हेनेवर यू स्टार्ट you start with a figure, then you write given, then write to prove, and then you write proof. तो हम बनाते हैं पहले एक क्वाड्रिलेटरल. सो एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया. सी दिस इज आवर फिगर. सी साइड में दी गई. ओके ओके, नाम दे देते हैं उसको एज यूजुअल ABCND. A B C and D. अब थियरम के हिसाब से उसके दो डायगोनल्स हैं. अब एक डायगोनल होगा तो अपने आप थोड़ी ना बाइसेक्ट करेगा, है ना. तो दो डायगोनल है. C डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 जो कि B और D से गुजरा. ओके ओके, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने नाम दिया O. नाउ अकॉर्डिंग टू डेटा AO and OC are equal, OB and OD are equal. ये हो गया हमारा फिगर. अब लिखेंगे गिवन. गिवन, व्हाट इज गिवन? तो गिवन है
ABCD is a quadrilateral। तो ठीक है, उसके डायगोनल के नाम है AC and BD are its two diagonals such that OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD। डेटा लिख लिया हमने। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? थ्योरम पर जाओ। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको प्रूव ये करना है कि ABCD is a पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ अगर फिर से मैं बोल दूं, क्लास अगर मेरे साथ है तो उसको बराबर पता है। चैप्टर लाइन्स एंड एंगल वाज द टारगेटेड। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए तो लाइन्स आर पैरेलल। दिस प्रॉपर्टी विल बी यूजिंग हियर। तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल को टारगेट करते हैं। से इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल उसके सामने वाला COD, उसको नाम दे देते हैं CAOB मतलब दिस ट्रायंगल, NCOD मतलब ये ट्रायंगल। आमने सामने के दो कन्वर्स लेते हैं उसका। सो वी क्लियर कट वी हैव AO is equal to OC given AO is equal to OC। AO जो है वो ट्रायंगल 1 की साइड है, OC जो है वो ट्रायंगल 2 की साइड है। ओके, एक एंगल है जो इक्वल है। वी से एंगल AOB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल। रीजन क्या है? अगेन that chapter lines and angles is very very important, and for your kind information, after completing quadrilateral and some part of the circle, I will start with the basics of geometry. Stay with me in the class. अगर आपने हमारी चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी ऐसे में। आई विल पुट दैट पार्ट। नहीं करो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, जब भी नया आएगा आपको पता चल जाएगी। दिस इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एक साइड और है। हमने बोला OB इज इक्वल टू OD। सी OB इज इक्वल टू OD। अगेन क्यों? गिवन। तो बचे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by side angle side। SAS रूल, कंडीशन, क्राइटेरियन, जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो। अब बचे एंगल। सो एंगल ABO, ABO is equal to एंगल O। कौन सा? इसके सामने का ये O फिर क्या? D and C। एंगल ODC। ये दो एंगल इक्वल हुए। रीजन
CPCNT। ठीक है, अगर ये दो एंगल हुए ABONODC, अगर ये हुए प्लस एक और चीज भी हमको मिल गई, B से AB इज इक्वल टू CD, ये भी हमको CPCT से मिल गया। सो साइड्स आर इक्वल, AB is equal to CD, angles are equal, these angles are alternate angle, है ना। एंगल ABO and angle ODC are alternate angles, therefore AB is parallel to CD। अगेन फिर से वो लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर की बात है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए, इक्वल साइड के अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए, देन दिस टू साइड्स आर पैरेलल। समझने के लिए हम थोड़ा रोटेशन ले लेते हैं। से टू लाइन्स वी हैव, 1 and 2। हमको मालूम नहीं है ये X, Y, Z and W ने एक लाइन यहाँ ले ली। नाउ इफ समहाउ दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो XY इज इक्वल टू ZW, दोनों इक्वल हैं, एंड दिस टू एंगल Y XW इज इक्वल टू एंगल XWZ, therefore XY is parallel to ZW। हो ही जाता है। उसके हिसाब से AB is parallel to CD। Similarly, we can prove that AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Opposite sides are parallel and equal. Therefore, ABCD is a parallelogram. Hence, proof. ठीक, सीधा सट सामने, bang, no problem whatsoever. Thanks for watching. Next is midpoint theorem. Chapter 8 Quadrilateral midpoint theorem, the most important theorem of this chapter and the lengthiest one and the biggest one. It says, prove that the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. Moreover, it is half of the third side. मतलब अगर एक ट्रायंगल है और उसके जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली दो साइड है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से पैरेलल है। दिस थियरम इज वाइडली यूज्ड इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, सिंस वी आर लर्निंग हाउ टू डू दैट थियरम, तो हम पहले लिखेंगे गिवन। नो, व्हाट इज गिवन? गिवन से इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास जो ट्रायंगल था उसका नाम नहीं था, हमने नाम दे दिया ABC। यू कैन टेक XYZ, यू कैन टेक PQR, योर चॉइस। उसके दो मिड पॉइंट है, E and F are the midpoints of sides AB and AC respectively। ओके, मतलब एक ट्रायंगल है, तो चलो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वी आर ड्राइंग वन ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, से दिस इज आवर ट्रायंगल। फिगर थोड़ा बड़ा बनाया जाए ताकि जो है वो हमको पता चले, है ना। और मैंने गलती से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, सो आई विल नीड लिटिल बिट ऑफ इरेजर इन दैट पार्ट। रब किया, ये ट्रायंगल है हमारा, उसके दो मिड पॉइंट है। पहले साइड का नाम दिया जाए, इसे A, B and C। यहाँ दो मिड पॉइंट है E and F। E is the midpoint of AB, here F is the midpoint of AC।
उस लाइन को हम जोड़ लेते हैं। ओके, तो हमने उस लाइन को जोड़ दिया। प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है? से वी राइट हियर टू प्रूव। प्रूव हमको करना है EF is parallel to BC, 1. Second, EF is equal to half BC। ये 2 पॉइंट हमें प्रूव करना है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री हमने पढ़ा है सही तरीके से, तो उसमें बताया गया कि जब आपको किसी चीज को प्रूव करना है तो देयर आर डायरेक्ट प्रूफ, देयर आर इनडायरेक्ट प्रूफ, है ना, तरीके होते हैं। यहाँ इसको प्रूव करना है हमको, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वी राइट प्रूफ। क्या कंस्ट्रक्शन की हमको जरूरत है? वी गो एंड सी हियर। हमने बोला थ्रू सी, मतलब यहां से ड्रॉ ए लाइन, यानी सी से एक लाइन ड्रॉ करना है। किस तरफ? इधर इधर इधर। किस तरफ? ए लाइन पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल एक लाइन ऐसे जानी चाहिए। साथ साथ में करते भी रहते हैं। एडवाइजेबल ये है कि अगर ये थ्योरम आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो उसको, तो मेरे साथ साथ करो, फायदा होगा आपको। से ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इट इज पैरेलल टू AB। सी, क्लियर कट वी कैन सी। इसको हमने एरो दे दिया यहां पर। ओके, अब ये AB जो है विच मीट्स लाइन EF at D। So through C draw a line parallel to AB, जो कि हमने किया। C से एक लाइन हमने बनाया जो कि AB के पैरेलल है। Which meet EF at D। EF को D में मिली, मतलब EF को एक्सटेंड करना है हमें, तो EF को हम एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। जो पॉइंट है उसका नाम हमको देंगे, वो है D। राइट, अब कन्वेंस से ही प्रूव होगा, वरना प्रूव होने वाला नहीं भाई। सो वी टेक टू ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CFD। कहाँ है वो ट्राइंगल? सो वी हैव टेकन AFE, ये वाला, ये जो बड़ा वाला था। से हियर इट इज AFNE। दूसरा था CFD, वही आमने सामने वाले। सो CD एंड दिस वन वी टेक एज CFD। ये दो ट्राइंगल की बात हो रही है। सो ये दो ट्राइंगल में हमने पहले लिया AF इज इक्वल टू CF। क्यों? F is the midpoint of AC। F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हम पहले ले चुके हैं। ओके, एंगल लिया हमने, एंगल FAE इज इक्वल टू एंगल FCD। कहाँ गए? FAE ये वाला एंगल, FCD ये वाला एंगल। नाउ सिंस वी हैव ड्रॉन AB इज पैरेलल टू CD। अगर क्लास मेरे साथ है, अगर आप जो ज्योमेट्री हमने आपको पढ़ाया उसको तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आपको बराबर पता चल जाएगा कि इफ AB इज पैरेलल टू CD देन AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल हुए अल्टरनेट एंगल, angles as AB is parallel to CD and
AC is the transversal. Got it? Then we take one more side, AFE, say angle AFE, ये वाला है, is equal to angle CFD, vertically opposite angle. दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होने जा रहे हैं, therefore triangle AFE is congruent to triangle CFD by कौन सा रूल लगेगा? हमने लिया एंगल, साइड और एंगल, सो ASA रूल, सी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA रूल से ये दोनों इक्वल हो गए, therefore AE is equal to CD. तो AE और CD इक्वल हुए and EF is equal to DF. Reason? CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Okay. Then we write that since E is the midpoint, किसका midpoint है ये? Since E is the midpoint of AB, तो AE is equal to EB इक्वल हुए, BE is equal to CD. Since E is the midpoint of AB, E अगर AB का midpoint है तो AE and दूसरा वाला जो था EB, AE and EB are equal. E is the midpoint of AB, तो AE and EB ये दोनों इक्वल हुए. See? जब AE जो है वो CD के इक्वल है और AE और BE इक्वल है, देन BE इज इक्वल टू CD इक्वल हुए. ठीक है, अगर वो इक्वल हुए तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं यहां पर. नाउ वी से BE इज इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव किया, एंड BE is parallel to CD, ये हमने ड्रॉ किया था. तो वी राइट बाय कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ गए. सो पेपर को थोड़ा ऐसे ले लिया जाए ताकि हमको नजर आए दिस लाइन दैट वी वांट टू टारगेट. ओके, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? तो बोला गया कि E, B, C and D is a parallelogram. कौन सा क्वाड्रिलेटरल? उसकी बात किया हमने, E, B, C and D, ये वाला पूरा पूरा, ये E, B, C एंड D, ये है पैरेललोग्राम. ये हमने प्रूव कर दिया. तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम है, देन ED is parallel to BC. ED is parallel to BC. Therefore, EF is parallel to BC. किसी ने बोला रुक जाओ कैसे हुआ, क्या हुआ? से अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED जो है वो BC से पैरेलल हुआ. सही है, ED is parallel to BC.
गुड, वी हैप्पी? यस। अब ED की जगह पर मैं EF लिख सकता हूं क्योंकि E डैश F डैश D ये तीनों एक ही लाइन के नाम है। वी हैप्पी? यस, वी हैप्पी। सो EF इज इक्वल टू BC हमने बोल दिया। ओके। ऑल्सो ये भी तो बताया गया भाई कि ED इज इक्वल टू BC। फिर से आ जाओ, ED और BC दोनों इक्वल चीज के नाम है ना? ED एंड BC दोनों इक्वल है। ED इज इक्वल टू BC हम कर चुके हैं उसको। सो वी कैन से हियर दैट नाउ अब हमारे पास आ गया, थ्योरम प्रूव होने की कगार पर है। से EF इज इक्वल टू DF एंड EF plus DF is equal to ED. EF is equal to DF. EF is equal to DF. ये दोनों इक्वल थी, बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया। ओके। EF plus DF is equal to ED बिटवीननेस। यहां हम ले लेते हैं से E डैश F डैश D। अब आ गया समझ में? Therefore EF is equal to half ED EF is equal to half ED and ED is equal to BC we have already taken here. Therefore EF is equal to half BC, hence proof। तो किसी ने बोला कि ये तो सेकंड पार्ट था, जो फर्स्ट कहाँ था? फर्स्ट यहाँ था, ठीक? तो बोल दिया फर्स्ट तो हम पहले कर चुके हैं। EF इज इक्वल टू EF इज पैरेलल टू BC, ये फर्स्ट किया हमने, और फिर सेकंड किया EF इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है। अगर उसको ध्यान से देखा जाए, पूरे थ्योरम को मैं रख दूं यहाँ सामने, पूरा आपके सामने ऐसे ही रख दिया जाए। से लुक एट द सम पार्ट बी इज कटिंग दैट पार्ट, बट और कोई रास्ता नहीं, कैमरे की रेंज ही इतनी है। अगर ध्यान से देखो तो कॉम्प्लिकेटेड है भी और नहीं भी है इसलिए कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो, नहीं इसलिए कि अगर समझ में आ गया तो किसी की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी चीज समझ ली जाए कि कहां क्या कैसे हुआ, देन दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। मैं फिर से एक रिकैप दे दूं। एक लाइन यहां से ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये ट्रायंगल 1, इसको हमने बोला दिस इज ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को कंट्रोल करो। तो उसमें हमने उसको एंगल साइड एंगल से ले लिया। ये दो एंगल अल्टरनेट हमने लिए। सी AF इज इक्वल टू FC, साइड हमने F इज द मिड पॉइंट वो ले लिया। दिस टू एंगल वी हैव टेकन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो AE इज इक्वल टू CD मिल गया। ये AE और CD जो है वो बराबरी पर हो गए। नाउ E इज द मिड पॉइंट, बराबर है ना। तो AE इज इक्वल टू BE। जब AE CD के बराबर था, हा? तो BE जो है वो AE के बराबर हो गया। तो हमको मिला BE इज इक्वल टू CD। अब BE इज इक्वल टू CD एंड BE इज पैरेलल टू CD, वो तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर लिया था। तो क्वाड्रिलेटरल EBCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको मिल गया कि ED इज पैरेलल टू BC। अब ED की जगह पर हम EF लिख सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC। ये हुआ पार्ट 1 हमारा। ठीक, स्ट्रेट अवे सीधा इंजेक्शन दिमाग में है। अगर ध्यान दो तो सीधा है, पहले दो ट्रायंगलों को कंग्रुएंट करो, CPCT से AE और CD को कंग्रुएंट करो, और फिर CD को BE के इक्वल बता दो।
AB से पैरेलल CD तुम बना चुके हो बाय कंस्ट्रक्शन, सो BE इज पैरेलल टू CD तुमने कर लिया, B इज पैरेलल टू CD हो गया, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम है, EBCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अब ED इज पैरेलल टू BC हो गया। अब ED की जगह पर हम EF लिख सकते हैं कि EF इज इक्वल टू हाफ BC, नहीं, EF इज इक्वल टू BC, तो पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया, EF इज इक्वल टू BC, दिस पार्ट प्रूव। अब उसको आधा बताना है, तो ED इज इक्वल टू BC, ED इज इक्वल टू BC बताया, E डैश F डैश D, तो EF प्लस FD इज इक्वल टू ED, बराबर है ना। EF इज इक्वल टू हाफ ED ले लिया हमने, या क्या किया हमने, EF इज इक्वल टू FD, सो 2EF इज इक्वल टू FD, बराबर है ना, तो EF इज इक्वल टू हाफ ED। ED की जगह पर हमने रख दिया BC, विच हमने पहले ले चुके हैं, सो EF इज इक्वल टू हाफ BC, हेंस प्रूव हो गए। आपके 4-5 जितने भी मार्क हो पॉकेट में आ गए, पॉकेट बड़ा हैवी हो गया भाई, मार्क बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। देखते हैं कैसे करते हो, सी टेक केयर।